Okay, today we'll start with the next part, that is isomerism in coordination compound. Isomerism in coordination compound. Normally we know isomerism means what? Same molecular formula and different structural formula. Compound having the same molecular formula and different structural formula are called as isomerism. But here we are studying the isomerism in which compound? Coordination compound. Isomerism in coordination compound. Okay. First we'll write down what is the meaning of isomerism. Now here what are isomer? Isomers are different compound. Isomers are different compound but having same molecular formula. Same molecular formula. Different compound having same molecular formula but different chemical and physical properties such as color, solubility, and melting point are called as a isomer. What is isomer? Isomers are different compound. The compound different रहेंगे. Compound different रहेंगे. Compounds are going to be different, but they are going to have the same molecular formula and different compounds, same molecular formula, but different chemical and physical properties such as color, solubility, and melting point are called as a isomer. I'll repeat again. What is isomer? They are the compounds having same molecular formula. उनका molecular formula same रहेगा, but different chemical and physical properties रहेंगे such as color, solubility, and melting point. Okay. Then second here, isomer are also classified into two types. The first one is a stereoisomer. The first one is stereoisomer, and second one is structural isomer. The isomer are classified into two, stereoisomer and structural isomer. And today we will discuss about the stereoisomer. Today we'll discuss about which one? Stereoisomer. So this is like first type. Isomer are classified as what? Stereoisomers, and isomer are classified as stereoisomer and structural isomer. And stereoisomer and structural isomer are also called as which one? Constitutional isomer. They are also called as a constitutional isomer. So what is the isomer? They are having same molecular formula, but different chemical and physical properties are called as isomer. Isomer are of two types, stereoisomer and constitutional. उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग? Structural isomer. But today's lecture will discuss about which one? Stereoisomer. Now what is stereoisomer? Stereoisomer means what? They have same link, मतलब उनका formula same रहेगा. Same link among the constituent atom, मतलब उनका formula same रहेगा, but the arrangement of the atom in the space are different. मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा, but the arrangement of atom in the space are different. And stereoisomer are also further classified into two types. The stereoisomer, there are two types of the stereoisomer. One is a geometric isomerism, which is also called as diastereomers, and second one is called as a enantiomers or optical isomer. Enantiomers or optical isomer, correct? So what is stereoisomer? आज हमें stereoisomer के बारे में study करना है. Stereoisomer means what? They have the same link among the constituent atom. मतलब इनका formula same रहेगा, but the arrangement of the atoms are going to be different. Arrangement of atoms are going to be different, correct? And there are two types of stereoisomer. The first one is a geometric isomer and second one is a enantiomer or optical isomer. उसमें से हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के बारे में, और ज्योमेट्रिक आइसोमर के बाद स्टडी करेंगे enantiomers
ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के बारे में पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद स्टडी करेंगे इनैंशियोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में. तो फर्स्ट आई स्टार्ट विद ज्योमेट्रिक आइसोमर्स. आई टर्न द पेज. और हमें किसके बारे में स्टडी करना है? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स. एंड ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? डाइस्टीरियो आइसोमर. Now in these isomer there are again in geometric isomer again two type, cis and trans type. Geometric again we are having cis isomer and we are having the trans isomer. In geometric isomer we are having cis isomer and trans isomer. What is cis isomer? Identical ligands, but the same ligands occupy the adjacent position. Same ligands occupy the identical ligands occupy the adjacent position. And what is trans isomer? Identical ligands occupy the opposite position. तो ये हमारे दो टाइप है. देखो सबसे पहले क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे कि आइसोमर हमारे पास दो टाइप के आइसोमर्स है. कौन से दो टाइप के आइसोमर्स है? स्टीरियो आइसोमर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल. ये दो टाइप के आइसोमर. उसके बारे में क्या देखा कि इसके बाद हमें किसमें स्टडी करा है? स्टीरियो आइसोमर के बारे में. स्टीरियो आइसोमर मतलब व्हाट? द लिंक among the constituent atoms are the same. They have the same link among the constituent atom, but the arrangement of the atom in the space are different. And stereo isomer are of two type. Which two type they are of? Geometric isomers and enantiomer. तो अभी हमें पहले किसके बारे में स्टडी करना है? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में. ज्योमेट्रिक आइसोमर में दो टाइप के आइसोमर है, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर. और यहाँ पे ज्यादा एग्जांपल के ऊपर ही फोकस करना है. व्हाट इज सिस आइसोमर? Identical ligands occupy the adjacent position. And what is trans isomer? Identical ligands occupy the opposite position. Correct. Now we'll take the example. In the example, first one, cis and trans isomer. Cis and trans isomers in square planar complex. So now we are going to first one, cis and trans isomer, but in which compound? Square planar complexes. Square planar complexes. Example, first one, square planar means what? I will show you all. First one is MA2 B2. MA2 B2, where M is central metal atom. M is what? Central metal atom. A and B are monodentate ligands. A and B are what is monodentate ligand? Monodentate का मतलब ligands having one donor atom. यहाँ पे what is M stand for? M is a central metal atom. Central में जो हमारा है वो. And A and B मतलब what? A and B are the monodentate ligand. What is a monodentate ligand? The ligand having only one donor atom. Ligand having only one donor atom. इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा? MA2B2 का M A इलेक्ट्रॉन M को देगा बिकॉज लिगैंड है. A इलेक्ट्रॉन लिगैंड को देगा. तो see here, identical ligands occupy the adjacent position. Identical ligands occupy the identical position. और यहाँ पे मैं लिखूंगा B.
This isomer is called as a cis isomer. This is called as a cis isomer. See here, identical ligands and the adjacent position. A बाजू बाजू में, B बाजू बाजू में. So they are called as a cis isomer. अगर मैं trans isomer लिखना रहेगा तो M. Here I will have the A. A is donating ligand to central metal atom. And here also we'll write down A. Similar groups are opposite position. Similar ligands are at the opposite position. Then here we'll have the B. And here we'll have the B. This is called as a trans isomer. मतलब compound same है. कौन सा compound था यहाँ पे? Ma2B2. 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 But here identical ligands adjacent position में आ रहे. Identical ligand adjacent position में आ रहे. तो उससे आप क्या बोलोगे? cis isomer. और यहाँ पे क्या हो रहा है फिर? Identical ligands are diagonally opposite. Identical ligands are diagonally opposite are called as a trans isomer. Identical ligands are diagonally opposite are called as a trans isomer. Okay. अभी इसका प्रॉपर एक अभी मैंने जनरल एग्जांपल है, प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं. एक प्रॉपर एग्जांपल अगर आप लोगे तो एग्जांपल कौन सा आएगा यहाँ पे? प्लैटिनम NH3 twice Cl2. Platinum NH3 twice Cl2. Platinum NH3 twice Cl2. तो यहाँ पे क्या आएगा? सेंटर में विल हैव द प्लैटिनम. प्लैटिनम को इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? NH3. यहाँ पे प्लैटिनम को इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? NH3. और यहाँ पे Cl और यहाँ पे एक Cl. ये लिगैंड्स है. Similar ligand occupy the adjacent position. Similar ligand occupy the adjacent position. So this is called as a cis isomer. Similarly, we'll take the platinum NH3 and here we'll have the NH3. Similar ligands are diagonally opposite. So it is trans and one Cl here, one Cl here. So this is called as a trans isomer. यहाँ से पता चला what is the trans cis isomer. यहाँ पे सेंट्रल में कौन सा मेटल रहेगा? प्लैटिनम. लिगैंड कौन से रहेंगे? अमोनिया के 2 लिगैंड है, क्लोरीन के 2 लिगैंड है. इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर. इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर. ये हमारा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है. करेक्ट. तो यहाँ पे सिमिलर एडजेसेंट सिमिलर लिगैंड अगर एडजेसेंट पोजीशन में रहेंगे तो उसे क्या बोलोगे? सिस आइसोमर. और सिमिलर लिगैंड अगर डायगोनली अपोजिट रहेंगे तो उसे क्या बोलोगे? ट्रांस आइसोमर. ओके. अब यहाँ पे सिस और ट्रांस के दोनों प्रॉपर्टीज अलग है. सिस के प्रॉपर्टीज अलग रहेंगे, ट्रांस के प्रॉपर्टीज अलग रहेंगे. मतलब दोनों के प्रॉपर्टीज अलग है. करेक्ट. तो कौन से प्रॉपर्टीज अलग है वो हम लोग देखते हैं. दोनों क्या रहेगा? देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है. दोनों का फॉर्मूला क्या रहेगा? प्लैटिनम NH3 twice Cl2. बट दिस इज कॉल्ड एज अ सिस आइसोमर एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांस आइसोमर. लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए उनको प्रॉपर्टीज भी चेंज. सिस आइसोमर के प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे? सिस आइसोमर इज मोर सॉल्युबल इन वाटर whereas trans isomer is less soluble in water. So cis isomer is more soluble in water and trans isomer is less soluble in water. Second, cis isomer is named as a cisplatin and it is used as an anti-cancer drug. Cis isomer named as a cisplatin and it is used as the anti-cancer drug treatment of the cancer. Whereas trans isomer is physiologically inactive. मतलब बॉडी में हमारे कुछ भी रिएक्शन नहीं करेगा. Trans isomer is physiologically inactive. It means it does not react with any part or it does not active in our body. But this is actively take part in our body and it is treated as an anti-cancer drug. Correct? तो उन्हें इतना ही बोलना है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा
स्ट्रक्चर अलग अलग रहेंगे और उनके प्रॉपर्टीज भी अलग अलग रहेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, द सीस एंड ट्रांस आइसोमर, सीस एंड ट्रांस आइसोमर इन विच कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये हमारा एग्जांपल 1 था। example 2 is like, first I'll say M A to B C type, ये टाइप है, मतलब ऐसे टाइप MA to BC टाइप। MA to BC टाइप का मतलब सेंटर में क्या रहेगा, M रहेगा, और A adjacent similar identical group on the adjacent sides, identical group on the adjacent side, और यहाँ पे आएगा B, यहाँ पे आएगा C। ये हमारा कौन सा बनेगा, ये बनेगा हमारा सिस। और यहाँ पे अगर M रहेगा, यहाँ पे आएगा, ये जनरल एग्जांपल में दे रहा हूँ, यहाँ पे A आएगा और इधर आएगा B, यहाँ पे आएगा C। ये हमारा बनेगा, ये बनेगा सिस आइसोमर, और ये हमारा बनेगा ट्रांस आइसोमर। देखो, identical groups are on the same adjacent position and identical groups are diagonally opposite। फिर इसका ही अभी हमें एग्जांपल लेना है। The example is platinum NH3 H2O Cl2। देखो एग्जांपल क्या है, प्लैटिनम NH3 H2O Cl2। उसमें सेंटर में कौन रहेगा, प्लैटिनम रहेगा, सेंटर में कौन रहेगा, प्लैटिनम रहेगा। Cl2 है, तो Cl कहाँ पे रहेंगे, एडजेसेंट पोजीशन पे रहेंगे, आइडेंटिकल ग्रुप ऑन द एडजेसेंट पोजीशन। और यहाँ पे कौन आएगा, NH3, और यहाँ पे कौन आएगा, वाटर। देखो, अमोनिया एक है, अमोनिया एक है, वाटर एक है, वाटर एक है, और Cl2 दो है। तो पर सिमिलर ग्रुप्स आर आइडेंटिकली, ये हमारा कौन सा आइसोमर बनेगा, सिस आइसोमर। और अगर मैंने सेम स्ट्रक्चर ऐसा लिखा, प्लैटिनम Cl Cl, आइडेंटिकल ग्रुप्स आर डायगोनली अपोजिट, आइडेंटिकल ग्रुप अगर डायगोनली अपोजिट रहेंगे देन इट इज कॉल्ड एज अ, ये हमारा बनेगा ट्रांस आइसोमर। ओके, तो देखो इस आइसोमर में क्या हो रहा है, आइडेंटिकल ग्रुप्स आर एडजेसेंट पोजीशन, एंड ट्रांस आइसोमर में क्या हो रहा है, आइडेंटिकल ग्रुप्स आर डायगोनली अपोजिट, अपोजिट टू ईच अदर, डायगोनली अपोजिट। सो दिस इज ट्रांस आइसोमर। तो ये हमने क्या देखा, आइसोमर्स इन विच कॉम्प्लेक्सेस, ये हमारे क्या थे, आइसोमर सिस एंड ट्रांस आइसोमर इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, सिक्स एंड ट्रांस आइसोमर इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, करेक्ट। अभी हम बी पार्ट देखेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सिस एंड ट्रांस आइसोमर बनी विच कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल। अभी हमने क्या किस में देखा था, स्क्वायर प्लेनर में देखा था, अभी किस में देखना है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर का मतलब, स्क्वायर प्लेनर का मतलब देखो यहाँ पे लिगेंड्स कितने रहेंगे, स्क्वायर प्लेनर का मतलब लिगेंड कितने रहेंगे, 1 2 3 4। देखो A2 B2 4 लिगेंड्स है। स्क्वायर प्लेनर में मतलब देखो कितने लिगेंड्स है, 1 2 3 4, स्क्वायर प्लेनर है। यहाँ पे भी देखो स्क्वायर प्लेनर में कितने लिगेंड्स है, 1 2 3 4। तो स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड्स कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। तो ऑक्टाहाइड्रल complex has 6 ligands attached to
the central metal atom. Octahedral complex has 6 ligands attached to the central metal atom. Okay. Octahedral complex has 6 ligands attached to the central metal atom. Now first we take type MA4B2. MA4B2. Now MA4 means what? Again here M is the central metal atom or ion. A and B are monodentate ligand. M is a central metal atom or ion, and A and B are a monodentate ligand. So again, I'll write the structure here as what? M, A4. A4, so I'll write this way now. Here A, A, and then B2. B2 will be B2. तो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे आइडेंटिकल लिगैंड आर एडजेसेंट ए ये हमारे कौन से लिगैंड्स है? आइडेंटिकल लिगैंड्स है. आइडेंटिकल लिगैंड्स आर एडजेसेंट. बी आइडेंटिकल लिगैंड्स आर एडजेसेंट. ये हमारा क्या बनेगा? सिस आइसोमर. और ट्रांस में क्या करना पड़ेगा हमें? एम विल बी एट द सेंटर. देखो ऑक्टाहेड्रल हमें पहले क्या ड्रॉ करना है? ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल कैसे ड्रॉ करोगे? 1 2 3 4 5 6. अभी देखो सिमिलर लिगैंड्स है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी. सिमिलर लिगैंड्स आर डायगोनली अपोजिट. और यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे आएगा. तो सेम लिगैंड मतलब यहाँ पे सिमिलर लिगैंड, आइडेंटिकल लिगैंड्स आर अपोजिट. तो ये हमारा बनेगा कौन सा आइसोमर? ट्रांस आइसोमर. अभी एग्जांपल लेते, प्रॉपर एग्जांपल. द प्रॉपर एग्जांपल इज CO NH3 4 times Cl2 plus CO NH3 4 Cl2 plus. So CO will be at the center. So Cl, right? CO will be at the center. 1 2 3 4 5 6. सिस आइसोमर में क्या लिखना पड़ेगा? सिमिलर लिगैंड टू आइडेंटिकल. तो सिमिलर लिगैंड में आइडेंटिकल लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? NH3 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 NH3. और यहाँ पे आएगा Cl. तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे और एंड देन यहाँ पे प्लस चार्ज. तो ये हमारा कौन सा आइसोमर बनेगा? सिस आइसोमर. ये हमारा बनेगा सिस आइसोमर. तो देखो आइडेंटिकल लिगैंड्स आर ऑन द एडजेसेंट पोजीशन. Identical ligands occupying the adjacent position. Identical ligands are occupying the adjacent position. अभी ट्रांस आइसोमर देखो तो CO 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. और यहाँ पे Cl है तो Cl अपोजिट टू ईच अदर. और यहाँ पे आएगा N
H3 NH3, देखो यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ, NH3, यहाँ पे आएगा NH3 एंड देन यहाँ पे आएगा चार्ज+1। ये हमारा कौन सा आइसोमर बनेगा, ट्रांस आइसोमर, ये हमारा बनेगा ट्रांस आइसोमर। okay? तो सिमिलर identical ligand occupying the opposite position, identical ligands are occupying the opposite position are called as a trans isomer। तो ये हुआ एग्जांपल ऑफ, कौन से टाइप का एग्जांपल हुआ ये, MA4B2, MA4B2। अभी इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, MA4BC, MA4BC टाइप। MA4BC टाइप का मतलब M will be at the center, then 1 2 3 4, correct, 5 6। A4 मतलब 1 2 3 4, BC, identical ligands are on the same side। ये हमारा कौन सा आइसोमर बनेगा, सिस आइसोमर। और M 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे A A A A A and B C, similar ligands और identical ligands are opposite, identical ligands are opposite। यहाँ पे एडजस्टमेंट आ रहा है लेकिन अपोजिट भी तो है ना। ये कौन सा आइसोमर बनेगा आपका, ट्रांस आइसोमर। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, प्लैटिनम NH3 4 times Cl Br 2+, platinum NH3 4 times ClBr 2+। Again here platinum will be at the center, platinum will be at the center, and then here we'll have NH3 4 times. So here we'll have 1 2 3 4 5 6, 6 इसलिए ऑक्टाहेड्रल, 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, NH3, ऐसा लिखना है, NH3 NH3 NH3, और यहाँ पे आएगा Cl, यहाँ पे Br ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे आएगा 2+, identical ligands are on the same side or adjacent side, identical ligands are on the adjacent side, therefore it is called as the cis isomer। NH3 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 Cl Br, 2+, और ये हमारा बनेगा ट्रांस आइसोमर, ये हमारा बनेगा ट्रांस आइसोमर। ट्रांस क्यों, आइडेंटिकल लिगैंड्स आर अपोजिट, आइडेंटिकल लिगैंड्स आर अपोजिट, तो ये हमारा बनेगा ट्रांस आइसोमर, करेक्ट। तो ये हम लोग ने किसके बारे में देखा, ये हमारा हेडिंग क्या था, स्टीरियो आइसोमर में सबसे पहले वाला हमारा हेडिंग था, दैट इज geometric isomers। geometric isomer, they are in the two forms, cis and trans। cis का मतलब identical ligands occupy the adjacent position,
एंड ट्रांस का मतलब आइडेंटिकल लिगैंड ऑक्यूपाई द अपोजिट पोजीशन. उसके बाद दो थे सिस एंड ट्रांस इन स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर का मतलब 1 2 3 4 बॉन्ड. स्क्वायर प्लेनर मतलब 1 2 3 4 बॉन्ड. ओके, यहाँ पे देखो स्क्वायर प्लेनर का मतलब 1 2 3 4 बॉन्ड. और बाद में हम लोगों ने क्या देखा, द सिस एंड ट्रांस आइसोमर. cis and trans isomer in which one octahedral complex. octahedral का मतलब 6 ligand. तो यहाँ पे 6 ligands है 1 2 3 4 5 6. If the ligand occupy the adjacent position, it is called as a cis. If ligand occupy the diagonally opposite position, it is called as a trans. और यहाँ पे भी एक दो एग्जाम्पल. तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुआ. अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज now what is optical isomer. Optical isomer are also called as the enantiomer, and optical isomer or enantiomer part were done in the chapter called as what, HDA. What is optical isomer? Object and its mirror image. When object and its mirror image are non-superimposable, then they are called as what, enantiomer. So what is optical isomer? The complex molecule that are the complex molecule or ion. It either it can be a molecule or it can be ion. Complex molecule or ion that are non-superimposable, mirror image of each other are called as the enantiomer. And more about the enantiomer we have done in which chapter, halogen derivative. The object रहेगा, उसका mirror image रहेगा, and object and mirror image are non-superimposable on each other. उसे क्या बोलोगे आप, enantiomer बोलोगे. What is optical isomer? The complex molecule or ion that are non-superimposable, mirror image of each other are called as what, enantiomer. मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज अगर एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा है, मतलब उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन सुपर इम्पोजेबल. एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एज व्हाट, enantiomer. उससे हम लोग क्या बोलेंगे, enantiomer बोलेंगे. ओके, देन what is second point in the enantiomer? The enantiomer that rotate. What is enantiomer? Enantiomer that rotate the plane of polarized light either to the right, that is clockwise, are called as dextrorotatory, while the other rotate the plane of planarized light to the anti-clockwise are called as a levorotatory. मतलब अगर हमारा enantiomer लाइट को अगर राइट साइड में रोटेट करेगा तो उसे आप क्या बोलोगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलोगे. लेकिन अगर हमारा enantiomer प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा तो उसे क्या बोलोगे, लियो रोटेटरी बोलोगे. The enantiomer that rotate the plane of plane polarized light to the right side are called as the dextrorotatory. The enantiomer that rotate the plane of plane polarized light to the left are called as the leorotatory. And अभी हमें यहाँ पे एग्जांपल देखना है, ऑप्टिकल आइसोमर देखना है, बट किसमें देखना है, ऑक्टाहाइड्रल में देखना है, स्क्वायर प्लेनर में नहीं देखना है. Optical isomer in what, octahedral complexes. Okay, optical isomer in octahedral complexes. यहाँ पे उसका एक एग्जांपल हमारे पास है. एग्जांपल इज COEN thrice 3+. पहले हम यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे EN का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EN? EN मतलब what? EN मतलब EN का मतलब होता है इथाइल डाइथाइलमाइन. EN का मतलब क्या होगा, डाइथाइलमाइन. उसका फॉर्मूला क्या आएगा, CH2 और यहाँ पे रहेगा NH2NH2. यहाँ पे दो डोनर आइटम है. सो EN इज कॉल्ड एज व्हाट, डाइथाइलमाइन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डाइथाइलमाइन, CH2 NH2. और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. सो इट इज बाय dentate ligand. It is a bidentate ligand. मतलब इसका दो डोनर आइटम, करेक्ट. तो अभी इसको
EN का मतलब क्या हुआ? EN का मतलब डाइथाइलामाइन, EN। EN का फॉर्मूला क्या हुआ? CH2 NH2N, तो 2 लिगेंड है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, EN इथिलीन डायमाइन, और एक साइड में आएगा NH2, तो ये एक डोनर एटम, दूसरे साइड में आएगा ये दूसरा डोनर एटम, तो ये डोनर एटम और ये मतलब इथिलीन डायमाइन जो है उसको हम लोग ऐसे डोनेट करेंगे। इट इज as इट इज डिनोटेड इथिलीन, ये इथिलीन डायमाइन, देखो इथिलीन और डायमाइन मतलब ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे EN कितने हैं? देखो EN हमारे पास 3 EN है, तो ये हमारा एक EN बनेगा। तो वापस मैं ड्रॉ करता हूँ, EN ये डोनेट करेगा, EN ऐसे both are correct. Now we'll draw the structure of CO will be at the center. CO will be at the center. EN, यहाँ पे EN 1 2 दो, correct? EN 3 4 1 2 3 4, EN 5 6, तो यहाँ पे 6 हो गए, तो इसलिए हमारे कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहाइड्रल है, क्योंकि 6 डोनर आइटम है, ये भी डोनर आइटम है, ये भी डोनर आइटम है, 1 2, ये भी डोनर आइटम है, ये भी डोनर आइटम है, और ये भी डोनर आइटम है, ये भी, तो ये हुआ हमारा आइसोमर, इसे हम लोग बोलेंगे डी आइसोमर। अगर यहाँ पे मिरर लगा देंगे, मिरर मिरर फिर उसका मिरर इमेज आएगा, मिरर इमेज क्या आएगा? देखो CO EN 1 डोनर एटम, सेकेंड डोनर एटम, EN 1 डोनर एटम, सेकेंड डोनर एटम, EN ये डोनर एटम, एंड दिस इज विच वन? L आइसोमर। तो अगर ये लाइट को रोटेट करेगा राइट साइड में, ये लाइट को रोटेट करेगा लेफ्ट साइड में, ये इसे डेक्स्ट्रो आइसोमर बोलना है और इसे लेवो आइसोमर बोलना है। सो यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने? ऑप्टिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहाइड्रल, हमें ऑक्टाहाइड्रल में दिखाई देगा, स्क्वायर प्लेनर में नहीं दिखाई देगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमें किस में दिखाई देगा? ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल मींस हैविंग 6 लिगैंड्स, हैविंग 6 लिगैंड। यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 लिगैंड्स ही है, लेकिन 3 लिगैंड्स है, लेकिन एक लिगैंड के पास कितने डोनर आइटम है? 2 डोनर आइटम है। लिगैंड 3 है, लेकिन एक लिगैंड के पास डोनर आइटम 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 6 आ गए। यहाँ पे 6 डोनर आइटम है, 1 2 1 2 1 2, 6 डोनर आइटम है। और ये इसका मिरर इमेज है, यहाँ पे भी हमारे पास 6 डोनर आइटम है, 1 2 1 2 1 2, तो ये हमारा डी आइसोमर और ये हमारा एल आइसोमर। ओके, स्क्वायर प्लेनर, ये एक नोट है हमारे लिए। स्क्वायर प्लेनर complexes do not show enantiomers since they have mirror plane and axis of symmetry.
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास है, दे डू नॉट शो इनैंशियोमर, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बताएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बताएंगे, बिकॉज दे हैव द मिरर प्लेन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, करेक्ट। तो ये हमारे आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी किया। एक मिनट प्रॉपर टेबल बताता हूँ आपको, फिर उसके आपको पता चलेगा कि आज क्या स्टडी किया हम लोगों ने। आज हम लोगों ने क्या स्टडी किया, आइसोमेरिज्म। हमारे पास दो टाइप का आइसोमेरिज्म है, एक है स्टीरियो आइसोमर्स और दूसरा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये हमारा स्टीरियो आइसोमर और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर। उसके बाद स्टीरियो आइसोमर में दो पार्ट है, एक है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, डाई स्टीरियो आइसोमर, और दूसरा रहेगा ज्योमेट्रिकल इनैंशियोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर, इनैंशियोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर। उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्रिक आइसोमर में दो पार्ट है, सीस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर, and cis and trans isomer we can able to see in the square planar and octahedral complexes, whereas हमारा जो enantiomers और optical isomer that we are able to see only in the octahedral complexes, correct। तो आज हमारा स्टीरियो आइसोमर का पार्ट हुआ, स्टीरियो आइसोमर ऑफ टू टाइप, ज्योमेट्रिक आइसोमर एंड enantiomer optical isomer। Geometric isomers of two types, cis isomer and trans isomer, and it is shown by the both the type of the compound, square planar compound and the octahedral complexes, and enantiomer is shown by only octahedral complexes। In the next lecture we'll do about the constitutional structural isomer, इनके बारे में next lecture में study करेंगे, ठीक है। So we'll stop it over here, remaining part we'll do it in the next lecture।